All right, so good evening, all of you. Welcome you all to PSIR Edge channel on Telegram. So this is part 4 of topic number 7. So we are doing a back to basics political science optional for paper 2 section 1, in which currently we are doing topic 7. We have already finished topic 1 to 6. So the videos of which are available on YouTube channel. तो टॉपिक 7 में भी हमने 3 पार्ट करे हैं, जिसमें कोल्ड वॉर, यूएसएसआर वगैरह सब कुछ कर लिया है. न्यूक्लियर क्वेश्चन देखा, आर्म्स रेस देखा एंड राइज ऑफ चाइना वगैरह भी देख लिए थे. आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 4 के अंदर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से. तो इसमें जो दो दिख रहे हैं ना यहाँ पे, सत्यम सर प्लीज ओपन दैट नॉन अलाइनमेंट पार्ट 1 जो है ना. ठीक है. एंड द वे विल प्रोसीड इज दैट वन पर्सन विल बी रीडिंग द टेक्स्ट एंड सिलेबस. बाकी लोगों को उसको समराइज करना है. अगर एक टॉपिक खत्म हो रहा है तो रैंडमली किसी को भी समराइज करने को बोला जाएगा. तो प्लीज लिसन अटेंटिवली. ठीक है सत्यम सर, प्लीज स्टार्ट. कांचन, आर यू लिसनिंग? Yes, sir, I'm listening. पहला टॉपिक आप समराइज कर दीजिएगा. ठीक है, प्लीज स्टार्ट सत्यम. Okay. Non-alignment movement. Introduction. NAM was movement of third world country which emerged after Second World War. It preliminarily focused on preserving the newly earned freedom and sovereignty of these countries. During early days, its actions were key factors in the process of decolonization process, and it has played an important role in preserving world peace and security. Historical evolution. Bandung Conference. Bandung Asian African Conference in 1955 is considered as most immediate antecedent to the creation of NAM. Meeting was attended by 29 heads of states. These belong to first post-colonial generation. The objective was to identify and assess world issues and pursuing the joint policies in international relations. There was also another important reason. These countries had newly attained independence. Development and increasing standard of living was the main concern for them, and therefore they did not wanted to be part of either Western or Eastern Bloc and became part of Cold War. 10 principles of Bandung were proclaimed at the conference, and such principles were later adopted as the main goal and objectives of NAM. Belgrade Summit. 6 years after Bandung movement of non-aligned countries was founded at First Summit Conference of Belgrade on September 1 to 6, 1961. The conference was attended by the members of 25 countries from Asia, Africa and Europe and Latin America, Cuba. The NAM declared as movement and not organization to avoid the bureaucratic implications of the latter. It was conceived to play an active role in international politics, to have its own stand on international matters, which will reflect the interest of its members. The 10 principles of Bandung. Respect for fundamental rights. सर एक सेकंड, यहाँ तक अभी समराइज कर देंगे. कांचन मैम प्लीज समराइज अंटिल नाउ. Am I audible? Yes. Yes. Sir, I'm so sorry. I won't be able to do it. I have a little too much noise around me. So, pardon me for that. Okay. ठीक है. तो सत्यम सर, यू वांट टू समराइज? हाँ, कर दूंगा मैं. नाम मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जनरेट हुआ मूवमेंट था, जो प्राइमरीली फोकस कर रहा था न्यूली डेवलप्ड कंट्रीज को, जो आइदर ऑफ द साइड चूज नहीं करना चाहते थे, और उनका जो फोकस था कि प्रिलिमिनरी उनको अपना डेवलपमेंट आगे बढ़ाना था और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ाना था. तो उसके लिए उन्होंने दोनों ब्लॉक्स को बैलेंस करते हुए मिडल पाथ चूज किया था. तो उसका हिस्ट्री स्टार्ट हुआ था बांडुंग कॉन्फ्रेंस से 1955 पे, वहां जहां पे 29 हेड्स ऑफ स्टेट मिले और उन्होंने डिसाइड किया कि 10 प्रिंसिपल्स ऑफ बांडुंग जो हम आगे देखने वाले हैं, और उन्होंने उन्हीं को ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नाम डिक्लेयर कर दिया.
और बाद में बेलग्रेड समिट में उन्होंने नाम को एज अ मूवमेंट डिक्लेयर किया एंड नॉट ऑर्गेनाइजेशन, कि कोई आगे जाके मतलब डिप्लोमेटिक कोई इश्यूज अवॉइड करने के, डिप्लोमेटिक या ब्यूरोक्रेटिक कोई इश्यूज आए इसको अलग से ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने के लिए, उससे बेटर उन्होंने इसको एक मूवमेंट पोर्ट्रे किया। ठीक है, तो 10 ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ। नेक्स्ट वाला मैं पढ़ लेता हूँ। इसको ओके, समराइज कौन करेगा बताओ? हु विल समराइज? समबडी वॉलंटियर प्लीज, अभी बोलो। जल्दी से कोई भी बोल दो यार। ठीक है, मैं कर दूंगा। ओके, आई रीड 10 प्रिंसिपल्स ऑफ बांडुंग। क्या क्या है देख लो। पहला है रिस्पेक्ट फॉर फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स एंड फॉर द पर्पसेज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है। सेकंड है रिस्पेक्ट फॉर द सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल नेशंस। थर्ड, रिकॉग्निशन ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल नेशंस लार्ज एंड स्मॉल। फोर्थ है एब्सटेंशन फ्रॉम इंटरवेंशन और इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अनदर कंट्री। पांचवा, रिस्पेक्ट फॉर द राइट ऑफ ईच नेशन टू डिफेंड इटसेल्फ सिंगली और कलेक्टिवली in conformity with the Charter of the United Nations. Sixth है abstention from the use of arrangement of collective defense to serve the particular interest of any of the big powers. Abstention from any country from exerting pressures on other countries. Seventh है refraining from the acts or threats of aggression or the use of force against territorial integrity of political independence of any country. Eighth point है settlement of all international disputes by peaceful means such as negotiation, conciliation, arbitration or judicial settlement, as well as other peaceful means of the parties' own choice in conformity with the Charter of the United Nations. Ninth point, promotion of mutual interest and cooperation. 10th point, respect for justice and international obligation. थोड़ा सा नीचे ले लेंगे सर, और कुछ है क्या इसमें? ये तो ये थे 10 प्रिंसिपल्स ऑफ बांडुंग। और कुछ है नीचे? अर्ली ऑब्जेक्टिव्स एंड अचीवमेंट्स की एक बार इसको भी पढ़ लूंगा, कितना बड़ा है देख लो एक बार। ठीक है, तो पहला कर लेते हैं, अर्ली ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नैम फोकस्ड ऑन द सपोर्ट फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, national independence, sovereignty, territorial integrity of the states, opposition to apartheid, non-adherence to multilateral military pacts, struggle against imperialism and colonialism, racism, foreign occupation, etc., strengthening of the United Nations, democratization of international relations, socio-economic development, as well as international cooperation on equal footing. In the 1950s, the movement played important role in support of nations struggling of independence and against colonization. Third World showed great solidarity under the leadership of NAM, and the movement gained considerable diplomatic prestige. तो ये थे अर्ली ऑब्जेक्टिव्स। आकाश सर प्लीज समराइज कर लीजिए दोनों पॉइंट्स, जो 10 पॉइंट्स हैं अर्ली ऑब्जेक्टिव्स। या ऊपर करना 10 पॉइंट्स। तो कुछ कुछ वर्ड्स इसमें लिख दे। तो इन ह्यूमन राइट्स इज फर्स्ट एंड फॉर अदर पर्पसेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। सेकंड, सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। Okay, through these words we can remember. And then third is equality of all nations. Then fourth is this internal affairs, no this intervention. Then we have fifth point is this collective defense should not be promoted in these things. Then sixth we have so sixth was this collective defense. Fifth was to defend collectively. Then seventh we have threats of aggression, refraining from threats of aggression. And then eighth we have by international disputes solving by peaceful methods. And ninth we have mutual interest and cooperation. And 10th justice and international obligation.
And then I think mostly the 1950s, it's same, the issues of the post-colonial states like self-determination and then opposition to apartheid and all these things. And then it played important role in struggle for independence and plus the democratization and all these things and also socio-economic development. ये 10 के 10 पॉइंट्स याद करने हैं क्या? हाँ, अभी वैसे यूपीएससी तो शायद ना पूछे ऐसे डायरेक्ट, बट यार वही करना पड़ेगा आई थिंक। चलो ठीक है, चलते आगे। ठीक है, आगे है इवोल्यूशन एंड प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द मूवमेंट। इसको समराइज कौन करेगा? गैरगॉन सर, वुड यू बी एबल टू समराइज? पढ़ लू मैं? आशुतोष, गैरगॉन, भाई जल्दी बताओ कौन समराइज करेगा यार। हाँ मैं कर दूंगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है इवोल्यूशन एंड प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द मूवमेंट। In 1960s and 70s, the movement expanded to include nearly all Asian and African countries. The issue raised by the movement was also evolved. It now included struggle for the respect of economic and political rights of third world countries. Algiers Conference in 1973 launched the concept of new international economic order. By the end of 1980s, the world observed the end of Cold War and collapse of socialist bloc. It was assumed that the existence of antagonistic blocs was the prime reason for the emergence, and therefore the scholars started asking questions about relevance of NAM. Nevertheless, the principles and objectives of NAM are still relevant at present international juncture. The end of one bloc has not done away with the problems of the world. On the contrary, new issues like terrorism have emerged which necessitate the global coordination. During 14th NAM summit in Havana, Cuba, in September 2006, heads of states and governments of member countries reaffirmed their commitments to the ideals and principles purposes of NAM. The leaders stated their firm belief that absence of two conflicting blocs is no way reduced the need to strengthen the movement. It also adopted renewed purposes and principles of the movement in present international scenario. तो आगे कंक्लूजन दिया है। सर प्लीज स्क्रॉल डाउन अ बिट। सत्यम सर, कुड यू प्लीज स्क्रॉल डाउन? ठीक है आशुतोष, आप समराइज कर तब तक। अरे सॉरी भाई, थोड़ा इंटरप्शन आ गया। हाँ okay. Then okay, as we have seen earlier, NAM was not merely an association, but it emerged as a movement. Okay. Then we also see the आशुतोष, यू आर नॉट ऑडिबल, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। okay. So as we have seen earlier, NAM emerged as a movement. Okay. नहीं, अभी भी नहीं आ रहा सर। बाकी लोग को आ रहा है क्या? हाँ, इसमें ना होता है जो आपके इनसे आप सेव कर सकते हैं, मतलब जो एडमिन है ना, वो एडमिन को नहीं, वो 200% कर रहा है। आई थिंक देयर इज सम इशू विथ योर माइक आई गेस। हाँ, काफी कम आ रहा है। ओके ब्रो, ठीक है, मैं समराइज करता हूँ। आशुतोष, आप एक बार माइक चेक कर लीजिए, कुछ तो इशू है शायद। ठीक है, तो 60-70 में जो मूवमेंट है ना, ऑल एशियन अफ्रीकन कंट्रीज तक एक्सपांड होने लगा था। जो इश्यूज थे वो भी इवॉल्व हो गए थे, जैसे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बातें हो रही थी। एंड एक 1973 में अल्जियर्स कॉन्फ्रेंस आया था, उसमें न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की कंसेप्ट आई थी। और 1980s में कोल्ड वॉर खत्म होने आया, सोशलिस्ट ब्लॉक कोलैप्स हो गया। फिर मतलब ऐसा बोलते थे ना लोग कि जो कोल्ड वॉर था उसमें बाइपोलैरिटी थी, एंड दैट वाज द रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ नैम, क्योंकि दोनों से दूर रहना इसलिए। लेकिन फिर वही स्कॉलर्स ने भी उसको थोड़ा रिवाइज कर लिया, इसीलिए रिलेवेंस का क्वेश्चन आया कि अभी कोल्ड वॉर है ही नहीं तो नैम रिलेवेंट क्यों है। लेकिन फिर इसका एक एंटी आर्ग्यूमेंट ये है ना कि जो इश्यूज थे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के, जैसे सच एज टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, वो तो अभी भी है।
इंटरनेशनल इकोनॉमी के बारे में जो मोनोपोली है वेस्टर्न कंट्रीज का वो भी है. दैट इज हाउ NAM इज स्टिल रेलेवेंट. 14 NAM समिट हुआ था 2006 में, वहां पे भी कंट्रीज ने रीअफर्म करे थे प्रिंसिपल्स को कि हम लोग साथ साथ हैं. और ठीक है, दैट्स इट आई गेस. थोड़ा नीचे ले लीजिए, कंक्लूजन देख लेते हैं. ओके, कंक्लूजन कह रहा है द मूवमेंट हैज सक्सीडेड टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग फ्रंट रिप्रेजेंटिंग कंट्रीज ऑफ थर्ड वर्ल्ड. करंट challenges of NAM include protecting international law, eliminating weapons of mass destruction, making United Nations more effective, defending human rights, security and stability and justice in international economic system. Long-standing goals of peace, development, economic cooperation remain to be realized. Thus, we can expect the movement to play even a bigger role in coming times. तो वही है यार, मतलब जो इश्यूज कॉमन है वही है, लेके बताओ कि अभी भी रिलेवेंट है. इंटरनेशनल लॉ, मास डिस्ट्रक्शन, ह्यूमन राइट्स, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, जस्टिस, इकोनॉमिक कोऑपरेशन. ठीक है, आगे चलते हैं सर, नेक्स्ट देख लीजिए. ठीक है, तो ये बताओ पहला वाला जो है कौन पढ़ेगा और कौन समराइज करेगा? प्लीज वॉलंटियर गाइस. गैरगॉन सर, उमेश, क्रिएचर. मैं पढ़ लेता हूँ सर. ठीक है, समराइज कौन करेगा? सत्यम सर, आप समराइज कर देंगे. पढ़ूँ सर? हाँ सर, गो अहेड प्लीज. नॉन अलाइन मूवमेंट, इसका प्रोफेसर टी.डी. पॉल कहते हैं कि नॉन अलाइन मूवमेंट is an example of soft balancing of weaker states towards great powers. These powers are engaged in intense rivalry and conflicts. As these countries had little material ability to constrain superpower conflicts and arms race, they adopted the method of soft balancing through normative powers. Normative power denotes new set of values like peace, disarmament, development, autonomy of choice, and to create new world order. Aims of non-aligned movement. Pandit Nehru never wanted that NAM gets converted into organization or institution. He wanted to retain the dynamic nature of the movement. That's why इसीलिए उन्होंने नॉन अलाइन को एक मूवमेंट की तरह रखा, ना कि इसे ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट किया. Hence, India has been evolving since it is a movement. इसीलिए इसका एजेंडा जो है टाइम के साथ इवॉल्व किया. 50s में कुछ और था, 60s में कुछ और था, एंड सो ऑन. द एजेंडा वाज एंटी इंपीरियलिज्म, एंटी रेशियलिज्म along with the opposition to the bloc mentality and arm race. It was an attempt to give a platform to developing countries to prioritize their concerns and to maintain principled position on global issues. प्रिंसिपल पोजीशन मतलब कोल्ड वॉर के टाइम पे जो दोनों ब्लॉक्स थे, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, दोनों से एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलना, ना कोई ब्लॉक ना ज्वाइन करना. दिस इज ए पॉलिसी ऑफ NAM. NAM was successful in its agenda of anti-racialism and anti-colonialism during its early years. NAM during 70s and 80s, 60s and 50s and 60s में इसका जो नेचर था कि वो प्रिंसिपल डिस्टेंस मेंटेन करते थे और एंटी इम्पीरियलिज्म, एंटी रेशलिज्म, क्योंकि उस टाइम पे नए जो रिपब्लिक्स थे, जो नया डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज थी, उनके एजेंडाज ऐसे ही थे कि पहले सेल्फ सफिशिएंट हो. अब 70s और 80s में इनकी प्रायोरिटीज कैसे चेंज होती हैं NAM की, वो यूं है कि ड्यूरिंग 70s and 80s द एजेंडा ऑफ NAM वाज डेवलपमेंट. NAM countries proposed the demand for new international economic order. What is new international economic order? It was proposed in context of neocolonialism and drain of wealth from peripheries to poor. Drain of wealth, as you know, कि जैसे जो रॉ मटेरियल्स हैं वो कंट्री से ड्रेन करना और वहाँ फिनिश गुड डंप करना. थ्योरेटिकल बेसिस इसका क्या है? डिपेंडेंसी थ्योरी. The agenda was पहला impose responsibilities on MNCs, valuation of goods exported by developing countries,
pressurizing Western countries to transfer funds and technologies. इसके आउटकम क्या क्या हुए, इसका कोई कॉन्क्रीट आउटकम नहीं निकला. There was lack of solidarity among third world countries. Western countries were successful in creating geopolitical conflicts among third world countries. Further, the proposal was also utopian. It was not possible to get equal value to the raw materials and manufacturing goods. Of course, it was an attempt to apply socialism in international trade. It was inspired by oil diplomacy of OPEC countries, but the countries didn't have similar bargaining power. Oil producing countries never applies the pressure on behalf of third world countries. सर 80s और 90s भी पढ़ के फिर उसके बाद तब एक बार सम अप करेंगे सर. 80s और 90s में इनका था वो सर, डिसआर्मामेंट की तरफ आया. एक कनेक्शन, लेट हिम समराइज, सर. देन आप पढ़ लीजिए. एक बार इतना समराइज कर लो थोड़ा. सर Okay. प्लीज गो अहेड. ओके. हाँ, तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर टी.डी. पॉल के अकॉर्डिंग वो एक सॉफ्ट बैलेंसिंग था जिसमें सुपर पावर कॉन्फ्लिक्ट और आर्म्स रेस को कंटेन किया जा रहा था इसमें. और वहाँ पे न्यू वैल्यूज नॉर्मल जो पावर्स थी वो कह रही थी, जैसे डिसआर्मामेंट, डेवलपमेंट, ऑटोनॉमी ऑफ चॉइस, ऐसे वैल्यूज को ये मूवमेंट प्रमोट कर रही थी. तो पंडित नेहरू का अकॉर्डिंग ये कभी वो चाहते नहीं थे कि ऑर्गेनाइजेशन बन जाए, क्योंकि उनको वही इसका डायनामिक नेचर मेंटेन रखना था मूवमेंट का, कि वो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फ्लेक्सिबल रह सके और डेवलपिंग कंट्रीज के अकॉर्डिंग जो भी सुटेबल नीड्स है उनको सेटिस्फाई कर पाए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. इसलिए उनको कभी एक ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर कभी दिया नहीं उन्होंने नाम को, उसको डायनामिक ही रखा. और इसीलिए नाम का एजेंडा हम देखते हैं कि हर डिकेड्स में इवॉल्विंग होता रहा है और उसके जो गोल्स है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, वो चेंज होते रहे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. जैसे 50s और 60s में वो एंटी इंपेरियलिज्म, एंटी रेसिज्म और ये ब्लॉक मेंटेलिटी जो हो गई थी सोवियत और यूएसए की आर्म्स रेस जो हो रहा था, उसके अगेंस्ट प्राइमरी उन्होंने काम किया. फिर 70s एंड 80s में उनका थियोरेटिकल बेसिस था डिपेंडेंसी थियरी. मतलब जैसे ग्लोबलाइजेशन एग्रेसिवली वेस्टर्न कंट्री स्पीयरहेड कर रही थी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को प्रमोट करने के लिए, और उसके थ्रू जो नक्रुमा ने कहा था जैसे न्यू कॉलोनिज्म प्रमोट हो रहा था, तो उनको काउंटर करने के लिए नाम ने 70s और 80s के डिकेड में ज्यादा काम किया, उन्होंने एमएनसीज को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी कि उन्होंने भी एक स्ट्रक्चर वे में बिहेव करना चाहिए, ना कि वो अपनी मनमर्जी चलाए. जो कि वो डेवलपिंग कंट्रीज में कर रहे थे, प्रेशराइज कर रहे थे गवर्नमेंट्स को फेवरेबल डील लेने के लिए. और जो गुड्स है वो गुड्स को भी बेटर मार्केट मिले, डेवलपिंग कंट्रीज के गुड्स को. और जो फंड एंड टेक्नोलॉजी है जो वेस्टर्न पावर्स के पास ही ज्यादा था, उसको भी थोड़ा लाने के लिए नाम कंट्रीज ने प्रेशराइज किया. पर उसका आउटकम कुछ खास निकला नहीं, क्योंकि ऐसे ओपेक कंट्रीज के साथ या बाकी कंट्रीज के साथ कभी भी यूनिटी बना नहीं सब लोगों का. थर्ड वर्ल्ड में भी हमेशा मतलब फ्रैक्चर्स रहे ही है, इसलिए सॉलिड आउटकम्स कुछ निकला नहीं इससे. आई थिंक हो गया ये समराइज. सर मैं कंटिन्यू करता हूँ. वो थोड़ी स्क्रॉल डाउन कर, स्क्रॉल अप करिए सर. नेक्स्ट समराइज कौन करेगा बताओ अभी. गार्गोन, क्रिएचर, इजराइल, कांचन. सर मैं कर दूंगा इस बार. आई कंटिन्यू. तो नैम का एजेंडा जैसे हमने अभी देखा कि पहले एंटी कॉलोनिज्म, एंटी इंपेरियलिज्म था, उसके बाद वहां से चेंज हुआ, फिर ये डिपेंडेंसी थ्योरी के थ्रू का यूज करके ये चाहते थे कि हमारे यहाँ कुछ रिसोर्सेज डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री की तरफ आए. अब
नैम का एजेंडा शिफ्ट हो गया डिसआर्मामेंट पे, इसका भी आउटकम एज यूजुअल नो सक्सेस. सो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग 90s, नैम वाज इन सर्च ऑफ एजेंडा. अब क्या था कि जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया तो इनके पास अब कोई एजेंडा ऐसा बचा नहीं. Then in the end of Cold War put question mark on the very reason of the existence. जैसे कि अब Cold War एंड हो गया, दोनों जो ब्लॉक्स थे जिनसे इन्होंने प्रिंसिपल डिस्टेंस मेंटेन की थी वो भी खत्म हो गया. तो इनके पास अब कोई एजेंडा बचा नहीं. तो अब क्या किया जाए उस पर फर्दर इन्होंने कैसे काम किया. सम ऑफ द मेंबर्स कंट्रीज प्रपोज लाइक इजिप्ट प्रपोज डिसोल्यूशन ऑफ द नैम. यूगोस्लोवाकिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर वो क्या हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ. एंड द नैम कंट्रीज प्लेड नो रोल इन हैंडलिंग द क्राइसिस. नैम ने जब उसका यूगोस्लोवाकिया का डिसइंटीग्रेशन होता है तो नैम का कोई उसमें रोल नहीं था. नैम कंट्रीज हैड नो पोजीशन ऑन द इशू ऑफ इन्वेजन ऑफ कुवैत बाय इराक, जबकि दोनों की दोनों इराक और कुवैत दोनों नैम कंट्री थी. देन व्हाट should have been India's approach. अब इंडिया की अप्रोच कैसी रहनी चाहिए थी. सी राजमोहन ने इसे इस पे मतलब इसे एक्सप्लेन किया कैसे कि सर थोड़ी से स्क्रॉल अप करिए. इंडिया शुड हैव एग्रीड टू डिसबैंड मूवमेंट. मतलब उन्होंने सी राजमोहन फोकस करते हैं कि इंडिया को क्या करना चाहिए था कि अब डिसबैंड कर देना चाहिए था मूवमेंट. इट वाज बेस्ट टाइम फॉर द ग्रेसफुल एग्जिट. जैसे कि कोल्ड वॉर खत्म हो गया था तो क्या होना था इन्हें कि सिराज मोहन के अकॉर्डिंग कि इसे नैम को डिसबैंड कर देना था और वो क्रेडिट ले रहा था कि हमने कोल्ड वॉर खत्म करने में हमने बहुत बड़ा योगदान दिया. which had no achievement in the past and no prospect of any achievement in future, according to the Siraj Mohan. It was the best time as NAM issue had taken the credit of the ending of the Cold War. NAM country should have declared the mission accomplished. However, India decided the other way. The then Prime Minister Simha Rao held that it is wrong to think that main agenda of the NAM was related to the superpower rivalry. It was just a coincidence that NAM was born at the time of Cold War. NAM has a broader agenda, it to address the concern of the third world countries. He held that even when there is a single superpower, it doesn't mean that we have to align with the single superpower. फिर इसी मुद्दे पे टीवी पॉल कहते हैं कि NAM never got the credit which it deserved. There has been an intellectual biasness against NAM. Despite all blemishes, NAM acted as the limited soft balancing mechanism. Some of the achievements of the NAM can be listed as delegitimization, the threat behavior of superpower. NAM does enjoy the partial credit towards ending colonialism, peace treaty, nuclear weapon-free zones. The development of the taboo against nuclear weapon has been because of the sustained pressure by the NAM countries. NAM has used the naming and shaming tools against the great powers. The intellectual biasness against NAM, a coalition of weaker states, is as natural as expected as there is a biasness against the subaltern class movement among upper class and upper caste in hierarchical society. तो सर सम अप कर दीजिए प्लीज. हो गया. ठीक है. तो अपन आई थिंक NAM इन 80s to 90s देखना था ना अपने को. इसके पहले अपन ने 70s और 80s का फेज देखा था जिसमें जो NIEO था वो एजेंडा था एंड उस टाइम पे भी कुछ आउटपुट नहीं निकला था ना. एंड अभी देख रहे थे कि अपन 1980s to 90s में मेन एजेंडा बन गया था डिसआर्मामेंट एंड इस टाइम पे भी आउटकम कुछ ज्यादा था नहीं. तो ड्यूरिंग 90s क्या हुआ, NAM वाज इन सर्च ऑफ द एजेंडा. क्योंकि इस टाइम पे क्वेश्चन मार्क था यार कि NAM एग्जिस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. व्हाई वाज देयर क्वेश्चन मार्क. जैसे कुछ कंट्रीज थे जैसे इजिप्ट जो फाउंडिंग मेंबर थे उन्होंने खुद ही बोला कि भाई अब NAM को एबोलिशन कर लेना चाहिए, डिसॉल्व कर लेना चाहिए. यूगोस्लाविया जो फाउंडिंग मेंबर था उसका खुद का डिसइंटीग्रेशन हो गया था. NAM कंट्रीज ने बिल्कुल हेल्प नहीं करी उनकी. ऑल्सो जो कुवैत इराक क्राइसिस वगैरह हो गए थे ना, इन्वेशन ऑफ कुवैत, उस टाइम पे भी NAM कंट्री ने कुछ स्टेप नहीं लिया. तो मतलब बॉडी रह के भी क्या ज्यादा यूज नहीं करा ऐसा क्रिटिसिज्म में. तो इस टाइम पे यार इंडिया का क्या होना चाहिए था व्यूज, इसके बारे में दो स्कूल्स ऑफ थॉट अलग अलग है.
सी राजा मोहन बोलते हैं ना कि नाम वाज अ मूवमेंट इन कोमा, अभी कुछ रोल नहीं है उसका। तो ही हैड सेड कि यार इंडिया शुड हैव एग्री टू डिसबैंड द मूवमेंट, मतलब मूवमेंट को खत्म कर देना चाहिए था, ग्रेसफुल एग्जिट लेना चाहिए था। वाई? बिकॉज इट वॉज द बेस्ट टाइम as NAM issue had taken the credit for ending the Cold War। मतलब ग्रेसफुल एग्जिट ले लो, कोल्ड वॉर का क्रेडिट ले लो एंड बंद कर दो मिशन को, ऐसा बोल रहे थे वो। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव थे उस टाइम पे, उनका स्टैंड अलग था। आई मीन इंडिया का स्टैंड उस टाइम पे कि जो नैम है, इट इज रॉन्ग टू थिंक कि मेन एजेंडा ऑफ नैम इज टू स्टॉप सुपर पावर राइवलरी। इट इज जस्ट कोइंसिडेंस कि उस टाइम पे कोल्ड वॉर चल रहा था। एजेंडा नैम का ये था कि भाई ब्रॉडर एजेंडा था कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को यूनिफाई करना है, उनके जो कॉमन कंसर्न्स है उनको सॉल्व करने हैं। एंड अगर एक सुपर पावर है फिर भी नैम रिलेवेंट है, बिकॉज वी कैन, इट डज नॉट मीन कि हमें उनके साथ अलाइन करना है, एक सुपर पावर है इसका मतलब। ठीक है, ये थे सी राजा मोहन के व्यू पॉइंट एंड नरसिम्हा राव के व्यू पॉइंट। अभी देखेंगे कि टीवी पॉल क्या कहते हैं इसके बारे में। टीवी पॉल के थोड़ी सी पॉजिटिव व्यूज है काफी ज्यादा। उन्होंने बोला कि यार नैम को क्रेडिट नहीं मिला, उन्होंने इतना अच्छा काम किया, उनको क्रेडिट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? बिकॉज देयर इज इंटेलेक्चुअल बायसनेस है। ठीक है, तो वो क्यों जो बायस जस्टिफाइड है ऐसा बोल रहे हैं ना। इट इज जस्ट लाइक द वे हायरार्किकल सोसाइटीज में जहां पे सबल्टन क्लास की मूवमेंट चलती है उसके अगेंस्ट बायसनेस होता है, उसी तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस में वीकर स्टेट्स जब एक साथ आते हैं उसके अगेंस्ट इंटेलेक्चुअल बायसनेस रहेगा। ठीक है, फिर उन्होंने कुछ अचीवमेंट बताए हैं क्या क्या हुआ है। एक था अचीवमेंट कि भाई सॉफ्ट बैलेंसिंग मैकेनिज्म करा उन्होंने। फिर एक है कि डिलेजिटिमाइजेशन कर दिया था थ्रेटनिंग बिहेवियर ऑफ सुपर पावर्स। फिर एक और था कि यार जो कोलोनियलिज्म खत्म करने का जो क्रेडिट है ना, पार्शियली दे सकते हैं ना नाम कंट्रीज को। पीटीबीटी हो गया, न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन्स हो गए, इसके लिए भी क्रेडिट दे सकते हैं। नेमिंग एंड शेमिंग करा ये नैम वालों ने। तो ओवरऑल यही था। आगे चलते हैं फिर, है ना। नेक्स्ट है प्रेजेंट रिलेवेंस ऑफ नैम और रिलेवेंस ऑफ नैम फॉर इंडिया। ठीक है सर, आगे कौन पढ़ेगा बताओ और कौन समराइज करेगा? 2 न्यू पीपल शुड वॉलंटियर। क्रिएचर इजराइल। सर मैं समराइज कर दूंगा। यू आर नॉट ऑडिबल क्रिएचर। सर मैं समराइज कर दूंगा। सर नहीं आ रहा है आपका आवाज। हेलो इजराइल सर, वुड यू लाइक टू रीड? सत्यम सर, आप पढ़ सकते हो? हाँ मैं पढ़ दूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ। Present relevance of Naam. According to C. Raja Mohan, movement in coma. Naam was always dysfunctional. Naam was irrelevant even before the end of Cold War. After Cold War, it has been put to coma because countries are not ready for its burial. They prefer to maintain the terrennial rituals. According to T.V. Paul, there is a space for resurrection of the old movement as a soft balancing mechanism against powerful states. As great powers are once again in the arms race, militarization of oceans, territorial expansion, there is a need for weaker countries to come together to delegitimize imperial ventures. If third world countries will not act as cushioning forces, the international order will spiral into hot war. Great powers need to be restrained, balanced. Soft balancing by smaller states has a key role to play because of military conflicts will ultimately bring sufferings to them. There is a need to revive Bandung spirit. Who will revive the Bandung spirit? No hope from China and India because they are in the race of superstardom. Hence, onus is on the smaller countries. Normative policies thus have a value even when results do not come in short run. Reliance of NAM for India. NAM provided basis to build India's soft power. Even at present, India needs third world solidarity. Views of the C. Raja Mohan. Moment in coma. NAM was never relevant for India. NAM countries never supported India.
For example, in 1962 war, countries like Indonesia, Ghana took pro-China approach. NAM countries gave Colombo proposals which were favorable to China. In 1965 war, NAM countries like Indonesia not only supported Pakistan, but even supplied weapons to Pakistan. In 1971 war, NAM countries of West Asia, South Asia, Southeast Asia fiercely supported Pakistan. Sri Lanka provided refueling to Pakistani aircrafts. Scholars who favor NAM. T.P. Srinivasan, a new NAM for new norm. NAM did benefited India because it allowed India to promote our national interest as per our preferences. NAM has allowed India to manage through situation of bipolarity. NAM is relevant for India and India has stakes in the integrity of NAM. India has to seek partnership with the countries so that India is able to exercise its freedom of thought and action, away from the influence of great powers like US, Russia and China. Motley and Jha, non-alignment, redux. Whether NAM is relevant for India or not depends on the prism through which we look at NAM. So far Modi government has not shown much inclination towards NAM, preferred to ignore NAM. However, India is rebalancing itself. Foreign Minister visited 18th Mid-term Ministerial Council of NAM countries in April 2018 in Baku, Azerbaijan. It would be mistaken if we just see NAM as rejection of bloc politics. NAM was a policy for autonomy, to establish peace and security, to contain superpowers' hegemonic ambitions. Thus, NAM needs to be reinvented. It is biggest platform of developing countries outside United Nations. It provides a platform for natural leadership of India. However, India needs to provide a concrete program of action, goals and leadership. तो कोई समराइज कर यहाँ दीजिए। पे खत्म हो रहा है इनका टॉपिक पूरा इस नोट्स हाँ। के अनुसार। हाँ, ठीक है, उमेश सर, वुड यू लाइक टू समराइज या फिर एनीबडी एल्स, गार्गोन, क्रिएचर? नहीं करता हूँ समराइज। जैसा सर सी राजमोहन का निगेटिव व्यू है इसमें नैम को लेके, और सो कॉल निगेटिव एंटी टीवी पॉल का इसमें पॉजिटिव नैम को लेके। सी राजमोहन कहते हैं कि दिस मोमेंट इज नैम इज ए मोमेंट एंड मोमेंट इज इन कोमा। नैम हमेशा डिसफंक्शनल था, आगे 50s 60s में तो कोई आउटकम वाली बात नहीं थी। एंटी रेसिज्म पे काम किया इन्होंने, उसके बाद इन्होंने काम किया जो डिपेंडेंसी थ्योरी पे, उसका भी कोई आउटकम, कंक्रीट आउटकम नहीं निकला। एंड देन डिसआर्मामेंट पे काम किया इन्होंने 30-90s में, उसमें भी कोई आउटकम नहीं निकला। सो सी राजमोहन assess it successful of NAM as a dysfunctional. NAM was irrelevant even before the end of Cold War. So जैसे कि हमने देखा पिछले 10-20 सालों में कि कोई कॉन्क्रीट सा विजिट नहीं है। हमारी जो करंट गवर्नमेंट है वो भी NAM के प्रति उतना इंक्लाइन नहीं है, जैसा कि आगे आएगा। फिर टीवी पॉल, देयर इज स्पेस फॉर टीवी पॉल कहते हैं, टीवी पॉल का इसमें पॉजिटिव व्यू है। वो कहते हैं कि there is space for resurrection of old movement as a soft balancing mechanism against powerful states. As great powers are once again in arm race. कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी आर्म रेस रुकी नहीं, वो स्टिल कंटिन्यू है। और टीवी पॉल ने कहा कि ये आर्म रेस को सॉफ्ट बैलेंसिंग, मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कैसे बैलेंस कर सकते हैं, सॉफ्ट बैलेंसिंग के थ्रू। मेटलाइजेशन ऑफ ओशंस, टेरिटोरियल एक्सपेंशन, देयर इज तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो स्टिल आर्म रेस वाले बिजनेस में है। वो ओशंस का मिलिटराइजेशन हो रहा है। छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उन्हें मिलिट्री बेसेस बनाए जा रहे हैं। लोग अपने टेरिटरी का टेरिटोरियल एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ चाइना, बाकी
कंट्रीज अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहे हैं, उनके तिब्बत तो देयर इज अ नीड फॉर वीकर, कोई ऐसा चाहिए, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो वीकर कंट्रीज हैं उनकी बात कहे और इंपीरियल वैल्यूज जो है उन्हें डीलेजिटिमाइज करें। इसके लिए टीवी पॉल ने के रिलीजन को बताया है। और सर इसका मतलब मुझे अच्छे से नहीं समझ में आया कि शॉर्ट में कर देंगे, थोड़ा ब्रीफली कर देंगे, ज्यादा इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं। There is a need to revive Bandung spirit, जैसा कि वो ऊपर हमने 10 पॉइंट्स लिए थे बेसिक जिन थ्योरीज पे काम किया था नैम ने, जो बेसिक लॉ रूल्स थे नैम के, जिन्हें जो उसकी स्पिरिट मानी जाती है, उसे रिवाइव करने की जरूरत है। तो रिलेवेंस क्या है नैम का? नैम प्रोवाइड बेसिस टू बिल्ड इंडिया सॉफ्ट पावर, इंडिया की सॉफ्ट पावर, इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंडिया पर से सॉफ्ट पावर को रिवाइव करना, बिल्ड करना सॉफ्ट पावर को वर्ल्ड में। और राजमोहन का व्यू रहा कि ये मूवमेंट कॉमा में है। 65 की वॉर के बाद बहुत सारी कंट्रीज ने, जैसे सर थोड़ा स्क्रॉल अप करिए प्लीज, जो वॉर की सिचुएशन में जब हम 65 में थे या 71 में थे, हमने देखा कि नैम कंट्रीज में हमें कोई मतलब उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिला। इवन जैसे यूक्रेन को छोड़ दिया गया मिला, वैसे ही इंडिया ने भी अपनी वॉर खुद ही लड़ी। तो यहाँ ये नैम के रिलेवेंस को बताता है। दैट्स ऑल सर। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट के लिए सिस्टम सर, एक और आर्टिकल है, पीछे जाना जरा। हाँ, यूएस हेजेमनी हो गया है। हाँ, नॉन अलाइनमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वाला कर लेते हैं ना। आई थिंक मोदी का जो स्पीच था शंग्रीला डायलॉग में, उसमें भी यही चीजें वापस रिपीट हुई है कि मोदी का फॉरेन पॉलिसी भी नॉन अलाइनमेंट की तरफ ही बढ़ रहा है। उसको कुछ नया नाम दिया था, आई थिंक स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग या कुछ तो था। मल्टी अलाइनमेंट, किसी मल्टी अलाइनमेंट था क्या? वो एक टर्म था, उन्होंने शंग्रीला डायलॉग में यूज किया था। बाद में देख के डाल देना मेरा। एज फार एज आई रिमेंबर, एस जयशंकर ने मल्टी अलाइनमेंट की बात करी थी, बट ठीक है, देखते आगे। ये वाला है नॉन अलाइनमेंट एज ए फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, इसको मैं पढ़ लेता हूँ। गैरगॉन सर, आप समराइज कर दीजिए। क्या आप पढ़ लोगे क्या अभी ये वाला? हाँ, मैं कर देता हूँ। ठीक है, आप पढ़ लीजिए सर, मैं समराइज कर दूंगा बाद में। Okay. Relevance of NAM for India. Non-alignment is often termed as India's exceptionalism. It has been India's grand strategy to protect its national interest. According to Martin Jha, in his article Decoded, India's Role in Multipolar World, non-alignment remains a highly ambiguous term, as the Indian elites never attempted to explain the substance of the policy of non-alignment. India never formally abandoned non-alignment, but there has always been a question mark on the status of India as a non-aligned country. During Cold War, India was in a quasi-alliance with USSR, and after Cold War, India has strengthened strategic partnership with US to an extent that there is a huge interoperability in their armed forces. During the time of Cold War, the assertion of non-alignment as a choice by India was termed by John Foster Dulles, the then US Secretary of State, as immoral, an example of Indian opportunism. It was also an example of Indian utopianism. India was trying to gain the best of the both worlds without offering anything in return. India was soon to realize that there is no free lunch. Non-alignment was India's arrogance to challenge US hegemony. India was successful to some extent as it could build the coalition of non-aligned nations. Also, US policymakers have always been allergic to the idea of non-alignment.
They never recognized the integrity of India's status as a non-aligned country. They viewed India as a Team B of USSR. Stalin was more critical of non-alignment in a very categorical manner. He held that those who are not with us are against us. Non-alignment was a new concept, and at times the scholars of international politics compare non-alignment with US policy of isolationism, the policy of neutrality, or equidistant adopted by some countries. It is to be noted that non-alignment should not be seen as a isolation or equidistance, rather principal distance. The concept of non-alignment of Nehru comes near to India's concept of secularism. India declared that it will stay away from blocs. India will be strengthening international law and UN. Pandit Nehru clarified to Indian Parliament that no government can sacrifice the national interest, not for the sake of ideology at all. According to him, non-alignment was the policy most conducive for India's national interest. नीचे करना है? Beautiful. काफी अच्छा था. ठीक है, तो I'll try to summarize. Relevance of non-alignment for India है. तो पहले non-alignment as a foreign policy and non-alignment movement are two different concepts. इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. नॉन अलाइनमेंट जो होता है ना, उसको इंडिया एक्सेप्शनलिज्म बोलते हैं, या फिर इंडिया यूटोपियनिज्म, या फिर इंडिया अपॉर्चुनिज्म बोलते हैं. आगे देखेंगे अपन. तो ये मतलब इट हैज बीन इंडिया का ग्रैंड स्ट्रेटेजी है टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट. ठीक है, तो एक स्कॉलर है मार्तंड झा, उनका एक आर्टिकल था डिकोडेड इंडियाज रोल इन मल्टीपोलर वर्ल्ड. तो इसमें बोला है कि यार उन्होंने नॉन अलाइनमेंट जो है ना, इट हैज बीन हाईली एम्बिग्यूअस टर्म, मतलब कोई क्लैरिटी नहीं है. तो इंडियन इलाइट्स ने कभी उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा है कि एग्जैक्टली है क्या ये. एंड इंडिया ने कभी भी फॉर्मली नॉन अलाइनमेंट जो पोजीशन है ना, उसको कभी अबेंडन नहीं करा है. तो हवेवर मतलब इसके बावजूद भी इंडिया के ऊपर क्वेश्चंस रहे हैं. देयर आर द क्वेश्चन मार्क कि क्या इंडिया सही में नॉन अलाइन है. एंड अपन ने देखा ना, जो यूएसए के जो ये है कोई तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने कैसे क्रिटिसाइज करा है. विल सी टू दैट. ठीक है, तो इंडिया हमेशा क्वाजी अलायंस में था यूएसएसआर साथ में. एंड कोल्ड वॉर के बाद में वी हैव ट्राइड टू स्ट्रेंथन आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद यूएसए. तो काफी ज्यादा इंटरऑपरेबिलिटी, वी हैव साइंड ऑल 4 एग्रीमेंट्स, जो फाउंडेशन एग्रीमेंट्स है ना, जिसोमिया कॉमकास, चारों साइन कर लिया अपन ने. तो जो ये कोल्ड वॉर के बाद में जो था, इनके बारे में जो जॉन फॉस्टर ड्यूल्स यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इन्होंने बोला है कि ये इमोरल है. तो इसको इंडियन अपॉर्चुनिज्म बोला है, या फिर इंडियन यूटोपियनिज्म बोला है. क्यों? क्योंकि इंडिया ने दोनों भी कंट्रीज से फायदा लेने का कोशिश करा. मतलब विदाउट अलाइनिंग विथ यूएसए और यूएसएसआर, इंडिया ट्राइड टू बेनिफिट फ्रॉम बोथ ऑफ देम, जो कि यूटोपियनिज्म था, ऐसा उनके अकॉर्डिंगली है. एंड एक और बात है, उन्होंने बोला है कि इंडिया को यूएसए ने कभी भी नॉन अलाइन देखा ही नहीं. दे ऑलवेज सॉ इंडिया एज टीम बी ऑफ यूएसएसआर. अच्छा, सिमिलरली स्टालिन जो थे ना, उन्होंने भी कैटेगरिकली बोला था कि दोज हु आर नॉट विथ अस आर अगेंस्ट अस. तो ये दोनों भी थोड़ा व्यू पॉइंट याद रख लो. जॉन फॉस्टर ड्यूल्स यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उनके व्यू पॉइंट, एंड स्टालिन के व्यू पॉइंट. फिर जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है ना, वो न्यू कंसेप्ट है. कई बार उसको कंफ्यूज करा जाता है विथ यूएसए पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिज्म, या फिर पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी और इक्विडिस्टेंस. हाउएवर इट इज टू बी नोटेड कि ये पॉलिसी एक्चुअली प्रिंसिपल डिस्टेंस का है. इसका मतलब नेहरू जी ने खुद क्लैरिफाई किया था कि इट कम्स नियर टू इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म. हम दोनों ब्लॉक से दूर रहेंगे, लेकिन हम इनएक्टिव नहीं रहेंगे. मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. वी विल बी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग एंड वी विल टेक आवर प्रिंसिपल डिस्टेंस बेस्ड, प्रिंसिपल स्टैंड लेंगे हम बेस्ड ऑन आवर ओन इंटरेस्ट. एंड इंडियन पार्लियामेंट में नेहरू जी ने क्लैरिफाई किया था कि नेशनल इंटरेस्ट हमेशा सुप्रीम रहेगा, कोई भी आइडियोलॉजी कभी भी सुप्रीम नहीं हो सकती है. तो नॉन अलाइनमेंट मतलब जस्ट पॉलिसी टूल है इंडिया के लिए टू अचीव इंडिया नेशनल इंटरेस्ट. तो दैट वाज इट अबाउट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. ठीक है, हो गया नहीं नीचे आई थिंक ये कमेंट्स दिए हैं और थिंक स्कॉलर्स के. ओके, देख लो फिर. हाँ, मैं पढ़ता हूँ. व्यूज ऑफ स्कॉलर्स. अपर्णा पांडे, चाणक्य टू मोदी, ये उनका बुक है. उसमें उन्होंने बोला है, नेहरू एस्पायर्ड टू प्ले लीडरशिप रोल. इंडिया वाज वीक मिलिटरीली एंड इकोनॉमिकली. नॉन अलाइनमेंट वाज एन ऑप्शन which allowed India, one, maintain its independence yet to be a part of world politics, and two, maintain relationship with both superpowers without coercion. माइकल एडवर्ड्स है, वो कहते हैं, he describes Nehru's non-alignment as a defense by friendship.
India had no option. Politically, India was democracy, so India could not join the communist bloc. Geopolitically, India was in periphery of communist bloc, so India could not invite aggression by communist bloc joining democratic countries. K. Netwar Singh hai, non-alignment was a doctrine, it was never a dogma. There was enough flexibility in the idea which allowed India to maintain its independence rather than becoming camp follower. It would not have been wise if India had put all eggs in one basket. Paul Power hai, he gives the domestic reason for adopting non-alignment. Domestic consensus in itself is a basis of sound foreign policy. ये ऊपर करोगे क्या? Considering internal divisions, example rightist favored West, leftist favored East, non-alignment gave Nehru a free hand in handling divisive domestic approach on foreign policy. Teresita Schaffer, India on a High Table of Diplomacy, ये उनका बुक है, उसमें वो लिखते हैं कि non-alignment made good sense for India and it would have worked for India had Indian neighbors not joined with outside power. Henry Kissinger लिखते हैं The World Order में, though non-alignment was irritating for US, yet it was the best course of action which India could have followed. Present status of non-alignment, ये थोड़ा ऊपर करो. Throughout its history, except the phase of Pandit Nehru, India has never been genuinely non-aligned, according to C. Raja Mohan. Non-alignment during Cold War became synonymous with reflexive anti-Americanism of South Bloc. After Cold War, the growing strategic partnership with US again puts the question mark on India's integrity towards non-alignment. Among the political parties, one, Congress was favoring non-alignment till Cold War. Both right and left were against. Two, after Cold War, both Congress and right left non-alignment, right left non-alignment, and chief advocate of non-alignment became left. Congress maintained a rhetoric without substance. And fourth, BJP never had illusion with non-alignment. Vajpayee had no hesitation in openly calling US and Israel as India's natural allies. Similarly, while describing the state of Indo-US relations, Prime Minister Modi had mentioned that relationship had gone beyond hesitations of history. Similarly, Modi and Israeli Prime Minister described the relationship as a marriage conceived in heaven. Modi's speech at Shangri-La Dialogue 2018. We see a shift from being too close to US, India reasserting strategic autonomy. The speech has also reflected India's balancing act. On one side, he emphasized on the importance of cooperation with Russia and China. On the other hand, he expressed India's support to work with US to maintain peace and rule-based order in Indo-Pacific. The more significant was the Prime Minister praising Singapore for being fair. Singapore has taught the world that when nations do not take side, stand on principles, they earn respect. Modi is trying to rebalance. Example, Modi is in Modi's informal summits with Russia and China at the time of trade war is an attempt to see as India's strategic posturing. One of the most respected Indian daily, The Hindu, in its editorial titled Familiar Moorings, it has held that India is striving for a more balanced approach in an increasingly uncertain world. Modi appeared to rechannelize the Bandung spirit of 1955, which led to the emergence of NAM. Modi's current posture reflects India's returning to familiar moorings necessitated by shifting plates of global politics and fault lines of history. According to South African experts, India is playing a delicate geopolitical game with US, Russia, and China as their influence is waxing and waning across the continent. According to civil society experts, non-alignment of Cold War era should be changed into a multiple alignment known as non-alignment 2.0. Marthan Jha suggests that India should come up with a clearer idea about the essence of its policy of non-alignment. The essence of policy is protecting India's own national interest. If India joins any alliance which protects its core national interests, it does not contradict its status as non-aligned. Since non-alignment is a Nehruvian legacy, the rightist party, its officials prefer using the term strategic autonomy. हाँ, तो ये जो टर्म था स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में वो ढूंढ रहा था.
कोई समराइज करेगा इसको? ठीक है, सत्यम सर आप कर लोगे? आई थिंक अपर्णा पांडे से स्टार्ट करना है हम लोग को, थोड़ा स्लोली करना और जस्ट जो कीवर्ड्स है उतना बताना, कोई इशू नहीं है। अरे भाई मेरा थोड़ा मिस हो गया था तो मैच कर लो कोई। अच्छा ठीक है, ओके, नो इशू। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, अगर मैंने कुछ मिस कर लिया तो आप लोग बताना, ठीक है। तो अपर्णा पांडे है, उनका एक बुक है चाणक्य टू मोदी, याद रखना यार, ये काफी नया बुक है, आई थिंक 2019 का 20 का है। तो उन्होंने बोला है कि नेहरू प्लेड लीडरशिप रोल, ही एस्पायर्ड टू प्ले लीडरशिप रोल एंड अलाउड इंडिया, मतलब नॉन अलाइनमेंट का फायदा क्या हुआ, टू मेंटेन इंडिपेंडेंस यट बी अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड टू मेंटेन रिलेशनशिप विद बोथ सुपर पावर्स विदाउट कोर्शन। तो इन्होंने मतलब काइंड ऑफ फायदा बताया कि नॉन अलाइनमेंट का क्या हो गया। ठीक है, फिर माइकल एडवर्ड्स है, उन्होंने डिस्क्राइब करा है नेहरू की नॉन अलाइनमेंट को एज डिफेंस बाय फ्रेंडशिप। वो बोलते हैं कि इंडिया हैड नो ऑप्शन, तो मतलब वी कुड नॉट हैव ज्वाइन एनी वन हैंड, एनी वन ब्लॉक, क्योंकि अगर हम यूएस को ज्वाइन करते तो रशिया बुरा मान जाता, एंड अपने बगल में रशिया है, इवन दो वी आर कम्युनिस्ट, इवन दो वी आर डेमोक्रेटिक, वी कैन नॉट ज्वाइन रशिया डायरेक्टली, क्योंकि अपना आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है उनके साथ में। ठीक है, ये माइकल एडवर्ड्स का है। के नटवर सिंह है, उन्होंने बोला है कि नॉन अलाइनमेंट वाज अ डॉक्ट्रिन, वो कभी डॉगमा नहीं था। कैन समबडी एक्सप्लेन दिस डॉक्ट्रिन एंड डॉगमा वाला? आई थिंक डॉगमा मतलब ये हो जाएगा कि आपका जो एक बिलीफ था कि बस हम नॉन अलाइनमेंट ही रहेंगे, ये हमारा बिलीफ है, ये हमारा कल्चर है, या ऐसा कुछ नहीं था। जैसे यूएस का जो डेमोक्रेसी और इस चीज का वो लोग जो झंडा लेके खड़े रहते हैं, हम हमारे लिए वैसा नहीं था, हमने अपने कन्वीनियंस के लिए नॉन अलाइनमेंट बनाया था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो यही कह रहा है कि बेसिकली इट वाज जस्ट अ मेथड जिसने इंडिया को अपना इंडिपेंडेंस बचा के रखने के लिए हेल्प कर दिया, रादर देन बिकमिंग अ कैंप फॉलोवर। एंड मतलब अगर इट वुड नॉट हैव बीन वाइज, अगर इंडिया सारे के सारे एग्स इनटू वन बास्केट डाल रहा है तो ये वाइज नहीं होता। तो ये मतलब फेवर में काइंड ऑफ तो माइकल एडवर्ड्स, अपर्णा पांडे, के नटवर सिंह, तीनों के पॉजिटिव व्यूज है इसके बारे में। अच्छा, पॉल पावर जो है ना, पॉल पावर, उन्होंने डोमेस्टिक रीजन दिए हैं कि डोमेस्टिक कंसेंसस था ही नहीं, तो फिर वो इट वॉज नॉट पॉसिबल कि हम कोई स्टैंड लेते, इसीलिए नॉन अलाइनमेंट से कोई एक नया टर्म निकाल के लाए हम लोग। ठीक है, तो डोमेस्टिक डिवीजन को हैंडल करने के लिए नया पॉलिसी लेके आए थे अपन। एक है टेरिसिटा शैफर, ये इन्होंने टेबल लिखा है कि इंडिया ऑन द हाई टेबल ऑफ डिप्लोमेसी। तो ये बुक का नाम है इंडिया ऑन द हाई टेबल ऑफ डिप्लोमेसी, टेरिसिटा शैफर। इन्होंने बोला है कि नॉन अलाइनमेंट मेड गुड सेंस टू इंडिया, it would have worked for India had Indian neighbors not joined with outside power। क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा मतलब अगर हमारे नेबर्स अगर किसी और पावर का साथ नहीं देते और सारे के सारे अगर नॉन अलाइन रहते, तो अगर तब इंडिया को बहुत फायदा मिलता है इस चीज से, ऐसा बोलना चाह रहे हैं ना? राइट, क्योंकि पाकिस्तान और इन्होंने वो सेंटो ब्लॉक वगैरह सब ज्वाइन कर लिया था, और करेक्ट। वो नॉन अलाइनमेंट का उनमें कोई मतलब नहीं था, तो इंटरनल डिफरेंसेस कोई रिजॉल्व ही नहीं हो पाए। दो सब लोग एक ही ब्लॉक का पार्ट थे, मतलब इवन सार्क कंट्रीज भी सब एक ही ब्लॉक का पार्ट थे। करेक्ट, तो मतलब इनका बस ये कहना था कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अगर सक्सेसफुल हो जाती है इंडिया के लिए, अगर हमारे नेबर्स भी किसी ब्लॉक नहीं ज्वाइन करते, तो वो भी अगर नॉन अलाइन रहते तो अच्छा रहता, ऐसा। ठीक है, हेनरी किसिंजर का बुक है द वर्ल्ड ऑर्डर, इसमें बोला है कि इवन दो नॉन अलाइनमेंट वाज इरिटेटिंग फॉर यूएसए, दिस वाज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो इंडिया ले सकता था। ठीक है, फिर जो अभी करंट स्टेटस क्या है नॉन अलाइनमेंट का, तो इसमें पंडित सी राजावन बोलते हैं कि एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट 5-10 ईयर्स ऑफ पंडित नेहरू, उसके अलावा इंडिया कभी जेन्युइनली नॉन अलाइंड था ही नहीं, इंडिया वाज ऑलवेज अलाइंड। ठीक है, तो ड्यूरिंग कोल्ड वॉर हम लोग रिफ्लेक्सिव एंटी अमेरिकनिज्म था अपना पॉलिसी, रिफ्लेक्सिव एंटी अमेरिकनिज्म, ऑब्वियसली वी वर प्रो रशिया उस टाइम पे। फिर क्वेश्चन मार्क आता है नॉन अलाइनमेंट के ऊपर विथ
growing strategic partnership with USA. आई डोंट थिंक यार इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है पार्टीशन जो व्यूज है ना. बीजेपी नेवर हैड इल्यूजन्स विद नॉन अलाइनमेंट. मतलब बीजेपी की पार्टी को तो कभी भी नॉन अलाइनमेंट के बारे में कुछ था नहीं. मतलब वाजपेयी ने ओपनली बोला था कि यूएसए एंड इजराइल एज इंडिया नेचुरल अलाइज. मोदी ने इंडिया यूएसए रिलेशन को बोला था कि द रिलेशनशिप हैज मूव्ड पास्ट द हेजिटेशंस ऑफ हिस्ट्री. हेजिटेशंस ऑफ द पास्ट को आगे चला है. सिमिलरली इजराइल एंड इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर का मीटिंग था, उन्होंने उसमें बोला था कि मैरिज इन हेवन या फिर मैच मेड इन हेवन ऐसा बोला है. ठीक है. एंड ये जो लेफ्ट पार्टी है उनका तो प्रो रशिया स्टैंड हमेशा ही रहा था. कांग्रेस का कोल्ड वॉर तक नॉन अलाइनमेंट था. सर इजराइल ने बोला है कि जो इंडिया और इजराइल की जो दोस्ती है वो हेवन में बनी है और उनकी जो शादी है वो धरती पर हुई है, मतलब अर्थ पर हुई है. ओके सर, थैंक यू. ठीक है यार, आगे चलते हैं. फिर मोदी का जो स्पीच है ना, शांग्रीला डायलॉग 2018 में, उसको थोड़ा सा एनालाइज करा है. उस स्पीच में ऐसा बोला जाता है कि इंडिया का बैलेंसिंग एक्ट दिखता है. एक साइड में हमने कोऑपरेशन विद रशिया चाइना की बात करते हैं. ऑन द अदर हैंड वी आल्सो एक्सटेंडेड सपोर्ट टू यूएसए टू मेंटेन पीस एंड रूल्स बेस्ड ऑर्डर इन इंडो पैसिफिक. तो मतलब ये काइंड ऑफ बैलेंसिंग एक्ट दिखा रहा है अपने इस पेज में. तो फिर उन्होंने, जैसे प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट था सिंगापुर के बारे में, उन्होंने बोला है कि व्हेन नेशंस डू नॉट टेक साइड एंड स्टैंड ऑन द प्रिंसिपल्स दे अर्न रिस्पेक्ट. तो दिस इज ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ बैलेंसिंग स्टैंड दिखा रहा है ये पूरा इंडिया का. ठीक है यार, मतलब और क्या है. इंडिया है, मोदी हैड ट्राइड टू रीचैनलाइज द बांडुंग स्पिरिट ऑफ 1955. ठीक है, बाकी को ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है. मार्तंड झा बोलते हैं कि इंडिया शुड कम अप विद क्लियरर आइडिया अबाउट इसेंस ऑफ इट्स नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी. एंड मतलब जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाला कीवर्ड है ना, मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का यूज करता है कीवर्ड का. ऑल्सो एस जयशंकर ने लेटेस्ट जो स्पीच हुए उनके, उन्होंने क्लियरली बोला है कि इंडिया शुड ऑप्ट फॉर मल्टी अलाइनमेंट. मतलब नॉन अलाइनमेंट पुराना हो गया, अब मल्टी अलाइनमेंट करने की बारी आ गई. अब ठीक है यार, दैट्स ऑल आई थिंक. कुछ मिस करा हो मैंने तो बता दीजिए आप लोग, अदरवाइज वी कैन मूव ऑन. ठीक है, आगे चलते हैं फिर. हो गया. ठीक है, आगे जो दूसरा डॉक्यूमेंट है सर वो खोलिए एक बार. सत्यम सर, वुड यू लाइक टू रीड? थोड़ा फास्ट पढ़िएगा क्योंकि अभी करा है पूरा अपन ने. थोड़े से नए कीवर्ड मिलेंगे बस. हाँ बिल्कुल. तो नाम को इंट्रो है, एक गोल्डन एज बोला है फॉर इंडिया. सर उसके पहले कोट है. अच्छा सॉरी. हाँ, व्हेन नेशन स्टैंड ऑन द साइड ऑफ प्रिंसिपल्स, नॉट बिहाइंड वन पावर और द अदर, द गेन ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड वॉइस इन इंटरनेशनल अफेयर्स. पीएम मोदी ने कहा था शंग्रीला डायलॉग में. मतलब वही कि एक पावर के पीछे ना रहते हुए अगर आप प्रिंसिपल्स के पीछे हो तो आपको रिस्पेक्ट मिलता है वर्ल्ड और इंटरनेशनल अफेयर्स में. तो नाम को गोल्डन एरा ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी कहा गया है. और बिकॉज इंडिया of our non-violent victory over the British and the leadership provided to the newly independent countries. नेहरू का विजन और स्टेटमेंटशिप दिखता है इसमें. और हाँ, इसमें हिस्टोरिकल क्या कंटेक्स्ट है तो सर एक सेकंड, मतलब आप पूरा पढ़ लीजिए लेकिन फास्ट पढ़ लीजिए क्योंकि इसमें बस वैसे भी बस कीवर्ड्स है, इसमें टेक्स्ट अच्छा, नहीं है अच्छा, ज्यादा कुछ. ठीक है. हाँ पूरा पढ़ लो लेकिन अच्छा, फास्ट ठीक पढ़ है. लो, ऐसा बोल रहा था मैं. हाँ. फास्ट पढ़ लेता हूँ, ठीक है. History. Emerging post-colonial among third world countries, aiming to gain an
independent political voice. Phrase non-aligned was first used by V.K. Krishna Menon in the United Nations 1953. The late 1940s Nehru had spelled out the strategy behind the phrase, first in the Constituent Assembly debates and later in the Parliament. The radio broadcast in 1946 Nehru said, "We shall take full part in the international conferences as a free nation with our own policy and not merely as a satellite of another nation." Nehru proposed that the India should avoid entering into other people's quarrels unless, and this is important, and our interest is involved. This did not rule out aligning if needs comes. Conferences: 1956 Bandung Conference or 1961 Belgrade Conference. 10 Bandung Principles were adopted. Leaders: Nehru, Tito, Yugoslavia, Sukarno, Indonesia, Nasser, and Nkrumah. Method of soft balancing the superpowers. 10 Bandung Principles. पंचशील प्लस 5 others. पंचशील में कौन से थे? तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर, इक्वलिटी एंड कोऑपरेशन, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस. अदर पार्ट से फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, क्रिएट जस्ट इंटरनेशनल ऑर्डर, कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट को अपोज करना है, रिस्पेक्ट फॉर एवरी नेशंस राइट टू डिफेंड इटसेल्फ. Initial views क्या थे? West, the core subject of US foreign policy at the time were political danger from USSR and China, freedom and peace through NATO and military alliances, offering US aid to toe their line. A pure commercial approach with a want of business in other countries. Nehru, who represented a respecting country, was disguised by this ideology. But still, it was the critical aid, which actually forced India to approach United States. Opportunistic and immoral. John Foster Dulles, जो वेस्टर्न व्यूज को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने opportunistic and immoral कहा. Structure of international politics does not provide the scope for exceptionalism like नाम. नाम को उन्होंने exception कहा और उसका कोई जगह नहीं कहा. Equated with the isolationism, Monroe Doctrine, and policy of neutrality, policy of indifference, Swiss and तुर्कमेनिस्तान. इनके साथ आइसोलेशन एंड न्यूट्रलिटी के साथ कंपेयर किया जाता है नाम को. यूएसएसआर ने कहा कि यूएसएसआर बेटर क्रिटिक था, डिडंट हेल्प इन स्टील सेक्टर, भिल्लाई प्लांट में उन्होंने हेल्प नहीं किया यूएसएसआर ने. और स्टालिन ने कहा था कि दोज हु आर नॉट विथ अस आर अगेंस्ट अस, इसलिए वो भी क्रिटिकल थे नाम के. नेहरू ने क्या क्लैरिफिकेशन दिए? विल एंगेज विद द अलायंसेस, डिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी टू असर्ट सॉवरेनिटी, नॉट आइसोलेशनिज्म, बट विल टेक एक्टिव रोल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, नॉट न्यूट्रलिटी, नॉट बी indifferent to evil, decisions to be based on the merit rather than towing alliance stand. India's contribution to drafting of UDHR, anti-apartheid movement in South Africa and global disarmament talks showcase this. मतलब बिल्कुल ही वो आइसोलेशनिस्ट नहीं था, वो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट था, बट अपने डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग. सी राजा मोहन ने कहा कि नॉट इंडियाज आइडियलिज्म बट प्रैग्मेटिज्म, नो अदर चॉइस बिकॉज प्रॉक्सिमिटी टू यूएसएसआर, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी और मिक्स्ड इकोनॉमी ऑफ नेहरू. मतलब इंडिया के पास सारे फीचर्स थे, कुछ फीचर्स वेस्टर्न के साइड के थे, कुछ ईस्टर्न साइड के थे, इसलिए इंडिया ने प्रैग्मेटिक अप्रोच रखा नाम वाला. हेनरी किसिंजर ने वर्ल्ड ऑर्डर की बुक में कहा कि उन्होंने अप्रिशिएट किया नाम पॉलिसी को और कंपेयर्ड यूएसएस पॉलिसी इन इट्स फॉर्मेट यूएस. मतलब इनिशियली यूएसए ने जैसे पॉलिसी रखी थी वो मुनरो डॉक्ट्रिन के टाइप्स, वैसे ही इंडिया की ये नाम पॉलिसी थी. टिल 1970s मोस्ट सक्सेसफुल फेज था, रेसिज्म के अगेंस्ट था, इंपेरियलिज्म एंड कॉलोनिज्म के अगेंस्ट था और सारे मिलिट्री अलायंस को ऑलमोस्ट अपोज किया था. India neither followed expansionist policy nor allowed other countries to follow expansionism. Worked for stability in newly liberated zones. 1971 से 1990 तक with detente between the superpowers was becoming effective and a threat of neocolonialism. Naam was
focused on NIEO was put forward at the 1973 Algiers Conference, development of underdevelopment in the periphery. Idea of Middle East where they used oil as a weapon, but other states didn't have that bargaining power. Middle East worked for their narrow interest. The West broke South-South solidarity. Middle East के थ्रू उन्होंने ब्रेक कर दिया South solidarity को. डिमांड्स क्या थे उनके कि रेगुलेट द वर्क्स ऑफ एमएनसी, जो हमने देखा था कि वो इकोनॉमिक उनका ज्यादा ये हो गया था. रिस्पॉन्सिबल अप्रोच टू अवर एनवायरमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस और सोशलिस्टिक आइडियाज. फिर उन्होंने वो एनआईओ आइडियाज को प्रमोट करने में सक्सेसफुल नहीं रहे और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट भी पूरा फेलियर ही था. फिर पोस्ट कोल्ड वॉर क्या हुआ, तो एंड ऑफ पोलैरिटी हुआ और कोई रीजन ही बन नहीं रहा था उनका एग्जिस्टेंस का, और इजिप्ट ने कहा भी खुले कि कोई रेलेवेंस नहीं है. फिर इंडिया में जी पार्थसारथी एंड ब्रजेश मिश्रा called for its obituary should have declared mission accomplished and ended. इन्होंने भी यही सेम लाइन बोला, but new orientation was given saying cold war ended but not the problems. वही कहा उन्होंने कि problems अभी खत्म नहीं हुए. फिर हवाना डिक्लेरेशन in 2006 tried to reorient agenda, strengthen the UN, reinforce multilateralism, address the challenges of globalization, respect cultural diversity, implement human rights objectively and non-selectively. इन्होंने हवाना डिक्लेरेशन में कहा. फिर इंडियाज रोल through NAM was not only limited to attainments of its foreign policy goals but also to achieve long-term objectives of global peace and security. Hence its efforts have been to work in all those areas through which tranquility in the world can be established. Therefore, the main role of India through this movement was related to following: keep the organization intact. NAM did not let NAM hijacked by any aspirations, whether that of Cuba, Singapore, or Iraq. It fought for Iraq's retention after the Camp David Accords. It maintained its importance even after the fall of Berlin Wall. Support for newly liberation zone. Post World War II, various states of Africa and Asia became free, but there was a question mark on the political stability and economic viability. India prevented the outside intervention of powers. Hence, since third NAM summit at Lukasa, 1970, India raised the issue of new international economic order, NIU. First, against colonialism, imperialism and racism. उन्होंने वही इंडिया ने ये तीनों आइडियोलॉजीज के अगेंस्ट स्ट्रिक्टर स्टैंड लिया था. एफर्ट्स फॉर डिसआर्मामेंट, लेटर फेजेस में नाम के डिसआर्मामेंट पे फोकस था. इन अर्ली 1960s में इट वाज इंस्ट्रूमेंटल इन अप्रूवल ऑफ मॉस्को टेस्ट बैन ट्रीटी through the Conference of Disarmament in the UN. India always raised the problem of discriminatory nature of the nuclear proliferation regime through the forum of NAM. NAM was able to get decade of 1970 declared as the decade of disarmament by the UN. However, NAM's declining influence in the post-Cold War era did not allow it to follow such agenda more aggressively. फिर नाम के जो एफर्ट्स है वो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उन्होंने जो लगाए थे. सिंस नाम अल्गेरिस समिट 1973 उन्होंने इकोनॉमिक एजेंडा सेंटर स्टेज पे लिया था. उन्होंने न्यू मॉडल नीड्स टू बी एगैलिटेरियन एंड जस्ट बोला था, जो भी ग्लोबलाइजेशन हो रहा था. फिर कलेक्टिवली स्टेट्स रेज इश्यू इन द यूएन जनरल असेंबली एंड सक्सेसफुल इन गेटिंग द डिक्लेरेशन for the establishment of NIEO in the 1974. In the post-Cold War era, this became all the more ardent to achieve because of the process of the globalization and weakening of NAM itself. However, India is still making efforts through the new regionalism approach and joining new permutation and combinations through Indian Ocean Rim, Arctic, IOR, ARC, SAFTA, ASEAN, East, EAS, I think so. कुछ तो एशिया समिट. हाँ, ईस्ट एशिया समिट, करेक्ट. हाँ. It is also making efforts at collective level
to stop adverse impact of the working of MNCs on the developing countries of NAM. अब रेलेवेंस में सत्यम दो सर, views। मैं पढ़ लूँ क्या? हाँ हाँ मैं पढ़ पढ़ लूँ? लीजिए, हाँ पढ़ लीजिए। ठीक, ओके, थैंक यू। तो रेलेवेंस में है, देखो, रेलेवेंस इज नॉट लॉस्ट बट चेंज्ड। ये मतलब एक समरी या कंक्लूजन टाइप का है। अच्छा, क्रिटिक्स है, कुछ कुछ सपोर्टर्स है। तो क्रिटिक्स देखते हैं पहले। क्रिटिक्स क्या बोलते हैं कि ग्लोबल इश्यूज जो है ना, नो लॉन्गर रेलेवेंट बिकॉज नो कोल्ड वॉर नाउ, सो मेंबर्स हैव लॉस्ट रेलेवेंस, इंटरेस्ट। सेकेंड पॉइंट है कि डिस्प्यूट्स है मेंबर्स के बीच में ही, तो फिर कोऑपरेशन की बात नहीं आती ना। फेल्ड टू प्रिवेंट आउटसाइडर्स अटैक ऑन इट्स ओन मेंबर्स, जैसे यूएस अटैक ऑन इराक हुआ था 1990-2003 में। रिवर्स वे ऑफ डेमोक्रेसी हैम्पर कर रहा है नैम्स को, नैम का कॉज ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द ग्लोबल ऑर्डर। इकोनॉमिकली वीकर है सारे के सारे कंट्रीज, ये इसमें एक भी यूएनएससी का मेंबर नहीं है, तो जो इनका एजेंडा है वो पुश नहीं कर पा रहे हैं। लैक ऑफ लीडरशिप है, इंक्रीज रेडिकलाइजेशन विद इन द ग्रुप इटसेल्फ। फिर इन टुडेज वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, नो कंट्री कैन परस्यू इट्स इंटरेस्ट ऑन इट्स ओन, व्हाट इट नीड्स इज मल्टीपल अलाइनमेंट। ठीक है, तो मतलब ये क्रिटिसिज्म है कि भाई नॉन अलाइनमेंट से काम नहीं चलने वाला है, अभी मल्टीपल अलाइनमेंट करने की जरूरत है। अच्छा, एक और इशू है ना कि रीजनलिज्म के बेसिस पे है ये, इट इज डिवाइडेड ऑन द लाइंस ऑफ रीजनलिज्म। फिर क्रिटिक्स में नीचे कुछ और स्कॉलर्स है जो कहते हैं कि नैम डिड नॉट हेल्प इंडिया, ओनली द सोवियत पैक्ट ऑफ 1971 helped India. After that, India didn't practice NAM in genuine sense. Principle did not help much, had to acquire nuclear weapons post-Cold War. Remained committed to NAM, but had almost 30 strategic partnerships, which is not very different from alliance. India remained inwards after 1970 in South Asia. NAM countries were against India's nuclear policy as well. Only 40 NAM countries out of 113 voted for India in UNSC seat election. ठीक है, तो ये सब थे, इंडिया को हेल्प नहीं करा है बहुत सारे कंट्रीज ने। एंड इसमें एक दो और चीजें ऐड कर सकते हैं कि वी सॉ ना 1965 के वॉर में वगैरह, या फिर 1962 के वॉर में कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया ओपनली साइडेड विद चाइना एंड पाकिस्तान, इवन प्रोवाइडेड आर्म्स टू देम। ठीक है, तो फिर व्यूज क्या है? ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी गेटिंग ट्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू एम्बेसडर प्रभात शुक्ला, if we want countries to be on our side in our time of need, we need to assure them of the same from our side. तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम नॉन अलाइन रह के हमको हेल्प करेगा ऐसा क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? वी शुड बी ऑल्सो हेल्पिंग देम, इसके लिए अलायंस करना चाहिए ना। अकॉर्डिंग टू एम्बेसडर विवेक काटजू, our interests are not entirely in sync with the developing world anymore. While there are some overlaps, but our evolving priorities need to be taken into account. तो मतलब एक कुछ स्कूल ऑफ थॉट है ना जो इंडिया को सेमी पेरिफेरी बोलता है, जो अपन एक मॉडल देखा था, देखो वर्ल्ड सिस्टम थियरी का, कि कुछ कोर है, कुछ पेरिफेरी है, कुछ सेमी पेरिफेरी है। तो इंडिया अब वो नहीं रहा है डेवलपिंग कंट्री में। हर्ष वी पंत बोलते हैं, देयर इज अ नीड टू परस्यू न्यू गोल्स, देयर इज नो पॉइंट इन स्टिकिंग टू ओल्ड सिबोलिट्स। जी पार्थसारथी बोलते हैं, नैम इज अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, देयर आर नो बाइंडिंग प्रिंसिपल्स। फिर राजा मोहन बोलते हैं कि नैम इज इन कोमा, इट वॉज ऑलवेज इररिलेवेंट, मतलब कभी भी यूजफुल नहीं था, एंड इट बिकेम इवन मोर इररिलेवेंट इवन आफ्टर कोल्ड वॉर। तो ये सारे क्रिटिकल व्यू पॉइंट थे। जो लेफ्ट वाला कॉलम दिख रहा है ना आपकी स्क्रीन पे, इसमें से क्रिटिसिज्म के लिए जो भी रटना है सब कुछ रट लो, लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है ना कि सब कुछ याद नहीं रहने वाला है। तो जो भी 3-4 चीजें, 2-3 चीजें जो स्कॉलरली लग रहा है उतना याद रखो, बाकी ऐसे ही याद रखो, कुछ ज्यादा ही कंटेंट है। ठीक है, थोड़ा सा राइट साइड वाला कॉलम दिखाइए सर स्टार्टिंग से जी। तो ये सब सपोर्टर्स है। तो सपोर्टर्स क्या आर्ग्यूमेंट से देखते हैं एक बार। 25 स्टेट्स इन 1961 थे, अभी 118 है। दिस इटसेल्फ शोज कि नाम रेलेवेंट है एंड पीपल आर स्टिल कमिंग इन, मतलब यूजफुल लग रहा है सबको, इसलिए रुके हैं। फिर नाम हैज हेल्प चाइना टू गेट यूनाइटेड यूएनएससी का सीट फ्रॉम ताइवान। It will help with WTO negotiation. NAM will help in WTO negotiation. फिर resolution of dispute among third world countries के लिए भी help करेगा ये। Without NAM, India could have been used for the self interest of others. ठीक है, तो मतलब अगर NAM नहीं रहेगा तो कोई भी कंट्री को मिसयूज करा जा सकता है, NAM से वो बच जाएगी। NAM is helping
remain united on a larger global issues, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। शशि थरूर बोलते हैं वर्ल्ड इज इन अ न्यू कोल्ड वॉर लाइक सिचुएशन विथ 3 पोल्स। ठीक है, तो यूएस, चाइना एंड रशिया बोल सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे फिर वही है, फिर से आएंगे, फिर से रिलेवेंस बढ़ेगा। एम के नारायण बोलते हैं नैम वॉज ऑलवेज रिलेवेंट टू स्मॉलर स्टेट एंड विल ऑलवेज रिमेन रिलेवेंट। ऐसे श्याम सरन का बुक है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, इसमें बोलते हैं वो while NAM has lost much relevance for India, non-alignment still governs India's foreign policy. Foreign policy has substantive content separated from public posturing. While ethical posturing was public, our focus on relative autonomy was substantive. On India leaving non-alignment by friendship with Russia, Indian decision was in line with its autonomy, where India was not in alliance with Russia but manage इट्स नेशनल इंटरेस्ट। तो ये सारे व्यूज थे श्याम सरन के। अच्छा, एक और सॉल्वर है टीपी श्रीनिवासन, ये बोलते हैं कि विथ इंडिया सीमिंगली फॉलिंग इनटू यूएस कैंप विथ कॉर्ड एंड एडवर्स रिलेशन विथ चाइना इंक्रीजिंग, NAM नीड्स टू बी रिवाइव्ड। वर्ड नॉन अलाइनमेंट कन्वेड द रॉन्ग नोशन, बट द क्विंट एसेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट वाज फ्रीडम ऑफ जजमेंट एंड एक्शन, तो कैरेक्टराइज्ड एज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। That NAM has no ideal or ideology as a glue is wrong assumption. Though the criteria for NAM membership are general, anti-colonialism, anti-imperialism, and anti-racism were essential attributes of NAM countries. The diversity reflected in both Singapore and Cuba being NAM members. It was through NAM that we needed to counter the efforts to expand UNSC by including just Germany and Japan as permanent members. It also has the facility of members reserving their positions. No NAM country may agree to isolate Pakistan, but the NAM forum will be an effective instrument to project our anti-terrorist sentiments. Pakistan left CENTO and SEATO to join NAM. ठीक है, तो ये सारे व्यू पॉइंट्स थे, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। थोड़ा सा नीचे आएंगे सर। नेक्स्ट है NAM 2.0, ये क्या है? तो इसका एम था टू अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई द बेसिक प्रिंसिपल्स दैट शुड गाइड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ओवर द नेक्स्ट डिकेड। तो याद रखना है, NAM मूवमेंट अलग है, नॉन अलाइनमेंट एज अ फॉरेन पॉलिसी अलग है, एंड NAM 2.0 एक डॉक्यूमेंट है। इट्स अ डॉक्यूमेंट बाय मेनी स्कॉलर्स ऑफ इंडिया, इन्होंने एक कंबाइन करके वर्क किया था इसमें। तो इसमें पर्पस क्या क्या थे? टू ले आउट द अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, टू आइडेंटिफाई द चैलेंजेस एंड थ्रेट्स टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, define approach that India must take. Chinmay Ghare Khan said offers a comprehensive view of foreign policy, makes sensible suggestions. Nehruvian and liberal perspective है foreign policy का, which is by and large the establishment perspective of foreign policy issues. Criticism है इसका NAM 2.0 डॉक्यूमेंट का, भरत कर्नाड calls it a regressive foreign policy roadmap. उन्होंने बोला है कि they have misunderstood the power and ignores the centrality of balance of power politics in interstate relations. Thus, questionable analysis है and doubtful policy prescriptions है. The document says India's influence is ideational and moral rather than material. ये भी एक criticism है कि ideas के ऊपर rely कर रहा है. The problem is that while ideas matter, it is less important than material power, and usually it is servant. Morality, the power of example, is even more problematic because it is inconsequential in international politics. तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं ना कि NAM 2.0 relied on ideational power and morality का power of India, लेकिन दोनों भी खराब है। क्यों? क्योंकि आइडियाज मैटर करते हैं बट मटेरियल पावर ज्यादा मैटर करती है। मोरालिटी तो और भी प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि इनकॉन्सिक्वेंशियल है ये। अच्छा, NAM 2.0 is utopian because what it seeks is nothing less than a fundamental transformation of how states behave in international realm. तो ये realist argument है ये वाला। USA does not even merit a separate section, being dismissed in a couple of paragraphs within a section on global engagement. तो USA ने भी इग्नोर मार दिया इसको, लेकिन हम नहीं मारेंगे क्योंकि इसके ऊपर यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ लिया ऑलरेडी। ठीक है। Reinventing NAM. With a change in global political order, NAM needs to be realigned itself with current realities and reinvention to make organization relevant again in the offing. क्यों need है? Why is there a need to reinvent NAM?
पहला पॉइंट है ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर इज शिफ्टिंग फ्रॉम अटलांटिक ओशन टू इंडो पैसिफिक ओशन, दैट इज वी आर सीइंग द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट एंड द राइज ऑफ द रेस्ट एज सेड बाय फरीद जकारिया। ठीक है, तो इसके लिए नाम की जरूरत है क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है अभी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, राइजिंग पावर्स लाइक चाइना and India's strengths need to be leveraged to make voices of third world get heard। ठीक है, तो चाइना का ऑपरेशन है जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट हम आवाज उठा सकते हैं बाकी कंट्रीज के यूज करके। पोस्ट कॉलोनियल व्यू पॉइंट है कि सेफगार्डिंग द ऑटोनॉमी ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज, इसके लिए काम है। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस जो बोलते हैं ना, वो क्या बोलेंगे कि 21st सेंचुरी जो चैलेंजेस है लाइक ग्लोबल थ्रेट, टेररिज्म, पैंडेमिक्स, क्लाइमेट चेंज, ये किसी एक कंट्री सॉल्व तो होने वाले हैं नहीं, तो इसीलिए नाम के एजेंडा में इंक्लूड कर दिया गया है। द वर्ल्ड विजन कॉम्प्राइजिंग ऑफ ग्लोबल विलेज, जो केनिशी ओहा में बोलते हैं ना ग्लोबल विलेज, एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग ऑल नेशंस इंक्लूडिंग बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ नीड्स टू बी परस्यूड। तो ये जो वर्ल्ड विजन है ग्लोबलिस्ट स्कॉलर्स का, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी नाम काफी हेल्पफुल रहेगा टू यूनाइट कंट्रीज। लिबरल इंस्टीट्यूशनल व्यू है कि regional organizations do not ring a death knell of NAM. Rather, they need to be co-opted in the NAM framework to coordinate and reconcile their often conflicting aims. NAM is perhaps the biggest organization, a common thread to resolve differences. फिर एक और पॉइंट है कि भाई safeguarding member nations from ills of new liberal globalization, ये है मार्क्सिस्ट अप्रोच। फिर fight against rising protectionism एंड एंटी इमिग्रेशन, न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट एक्सेट्रा। विजय प्रसाद बोलते हैं, एम्बेसडर है ये, नाम नीड्स अ न्यू चार्टर लाइक NIEO। तो एक बार जो क्यों री इन्वेंट करने की जरूरत है वो देखते हैं। एक तो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर चेंज हो रही है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है तो जरूरत है इसकी, पोस्ट कॉलोनियल व्यू पॉइंट है, लिबरल इंस्टीट्यूशनल व्यू पॉइंट है इनका। विजय प्रसाद का देखा कि न्यू चार्टर लाने की जरूरत है, जो रीजनलिज्म है उनको कोऑप्ट करने की जरूरत है। पर क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, गवर्नमेंट पोजीशन एंड वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया, इसको कोई पढ़ सकता है क्या? गार्गोनसन, विल यू रीड? सत्यम? भाई मैं नहीं पढ़ सकता, कोई पढ़ लो। ओके, गार्गोनसन, कैन यू प्लीज रीड? Government position. Prime Minister Narendra Modi has been distancing himself from the concept of NAM and is engaging in selective alignments to suit India's development and security needs. MEA former Foreign Secretary S. Jaishankar talks about loose multiple alignments. Hamid Ansari led Indian delegation to the 17th Summit of Non-Alignment Movement here at Margarita Island in Venezuela from 17 to 18 September 2016. And three foundational principles: respect for sovereignty, peaceful settlements of disputes, and international cooperation. Hamid Ansari was the Vice President of India that time. Recently, at Shangri-La Summit, PM Modi talked about strategic autonomy, which reflects the spirit of non-alignment. NAM theme for 3 years aligned with the Indian ethos of peace, sovereignty, and solidarity for development. Way forward for India. Politics of the third world has been successfully influenced by the thematic settings of the global agenda. While India needs selective and multiple alignments to rebalance non-alignment as economic and political power is redistributed globally, it cannot allow deft balancing to degrade into opportunistic and sequential agreeing with whichever world leader is in town. That is why, as Henry Kissinger said, the modern day Chanakya wrote that good strategy can brook poor tactics, but poor strategy cannot be redeemed. NAM 2.0 documents asserts strategic autonomy to remain the linchpin of Indian foreign policy. We should increase our domestic capabilities in नीचे है क्या? तो बेसिकली वही है जो अभी तक पढ़ा है, वही समराइज किया हुआ है. We should increase our domestic capabilities in
in the order to ensure the same. Conclusion: as T.P. Srinivasan says, the quintessence of NAM lies in strategic autonomy. In the complex reality of international politics and geopolitical flux, dialogues and cooperation will allow post-colonial societies to form alternate constructions to safeguard their interest. Congrats. चलो खत्म हो गया. चलो ऑल राइट गाइस, कुछ ऐड करना है क्या किसी को? आई थिंक काफी होलिस्टिकली नाम हो गया है एंड आई वुड से ये दोनों भी पार्ट को कवर कर रहा है. मतलब इंडिया का व्यू पॉइंट भी बहुत ही इलेबोरेटली कवर हो गया है इन माय ओपिनियन. एंड मुझे नहीं लगता इसके बाहर कुछ नाम का है. काफी ज्यादा हो गया है मतलब. हाँ बढ़िया हो गया. ये एक्चुअली 95% पूरा नाम कवर कर लेता है. अगर एग्जाम तक और कुछ नया मटेरियल या आर्टिकल्स आया तो उसमें थोड़ा एडिशन होगा. तो इतना भी पढ़ लिया तो भी आपका नाम बहुत हो जाता है. एक इसमें एडिशन है, मुझे याद आ रहा है. आई थिंक 2020 जब कोरोना वगैरह चल रहा था ना, 20 या 21 में एक नैम का वर्चुअल समिट हुआ था एंड दैट वाज द फर्स्ट नैम समिट जिसमें पीएम मोदी ने पार्टिसिपेट किया था. तो इट वाज लाइक या इंडियन वो गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन नैम, ऐसे कुछ आर्टिकल्स आए थे उस टाइम पे. वो वैक्सीन डिप्लोमेसी के रिलेटेड कुछ था वो. करेक्ट. नहीं मतलब ओवरऑल ये था ना कि अभी तक तो पीएम मोदी जी या फिर जो ये राइट विंग गवर्नमेंट है अभी तक तो ये पूरा इग्नोर मार रहे थे, लेकिन थोड़ा सा डिप्लोमेसी क्यों ना हो लेकिन पार्टिसिपेट किया एट द हाईएस्ट लेवल. दैट शोज कि थोड़ा सा इंडिया ने रीबैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं. हाँ बट वही है, ये लोग नाम को बस नाम नहीं यूज करना चाहते. वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के चक्कर यूज करके ही वही आगे करेंगे, रीइंफोर्स उसको. करेक्ट. अच्छा, एनीथिंग एल्स एनीबॉडी वांट्स टू ऐड और समथिंग? मतलब मेरे हिसाब से काफी होलिस्टिकली है, इसमें से याद नहीं रहने वाला सब कुछ क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे ओपिनियन है. आई थिंक अभी तुम रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हो, देन वी विल डिस्कस. ओके हाँ, मतलब आई एम जस्ट गिविंग लास्ट 3-4 मिनट्स चांस है सभी को कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है तो सो दैट इट विल कम इन द रिकॉर्डिंग. एनी अदर सजेशन या फिर एक्स्ट्रा कुछ है इसमें? तरुण, क्रिएचर, सत्यम, न्यूज कुछ याद आ रही है किसी की इसमें? आई थिंक एस जयशंकर का जो नया बुक did not recall. नो इश्यूज सर. आई थिंक इसमें हम एस जयशंकर का जो व्यू है ना, इंडिया वे बुक है, उसको भी हम नाम में कोट कर सकते हैं. कुछ भी लिख लो उनके नाम से. ठीक है. अच्छा एक बार स्कॉलर बताओ मेरे को, कौन कौन प्रो में है, कौन कौन ऑपोजिट है नाम के? फिर राजा मोहन तो ऑब्वियसली अपोज कर रहे हैं, मूवमेंट इन कोमा बोल रहे हैं, टीवी पॉल सपोर्ट कर रहे हैं. और बताओ स्कॉलर्स. अपर्णा पांडे ने क्या किया है? उसने डिप्लोमेटिकली खेला है ना. हाँ मतलब सपोर्ट किया काइंड ऑफ मीडियम पाथ लिया है. और हेनरी किसिंजर बोल सकते हैं. हाँ किसिंजर ने काफी सपोर्ट किया, मतलब बेस्ट पॉलिसी इंडिया कुड हैव डन ऐसा बोला है ना उन्होंने. इरिटेंट फॉर यूएस बट पॉलिसी फॉर गुड पॉलिसी फॉर इंडिया. ठीक है और बताओ. टीपी श्रीनिवासन देख रहे हैं अपन. सत्यम सर, यू वांट टू ऐड समथिंग? ठीक है, और कोई व्यू पॉइंट याद आ रहा है आप लोग को? चलो ठीक है, मतलब दैट्स फाइन. आई थिंक इसको 3-4 बार रिवाइज कर लेंगे वीडियो को तो भी काफी यूजफुल रहेगा. ऑल राइट गाइस, थैंक यू वेरी मच टू ऑल दोज हु पार्टिसिपेटेड एंड गेव योर वैल्यूएबल इनपुट्स. एंड फॉर दोज हु आर वाचिंग दिस ऑन यूट्यूब, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. And this video, like I said before, would be sufficient for both paper 2 section 1 as well as paper 2 section 2 topics. ठीक है, तो अगला टॉपिक नेक्स्ट देख लेंगे हमने. थैंक यू गाइज.